इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द प्रोसीजर टू कंट्रोल द पोल्यूशन। जैसे कि अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोल्यूशन होता है, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो पोल्यूशन जनरेट कर रही हैं। अब इन प्रोसेसेस में जिनसे पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, सबसे इफ़ेक्टिव जो प्रोसेस है या जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है या सबसे लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ द कैटालिटिकल कन्वर्टर। So as the name suggests, catalytic, so in this we will be using some catalyst in the instrument so that we can control the pollution. Now the catalytical converter are of mainly two types. They are two-way catalytical converter and three-way catalytical converter. In two-way catalytical converter we generally control carbon monoxide and unburnt hydrocarbons. In three-way catalytical converter, we control carbon monoxide, hydrocarbons and NOx. As we are controlling three components, that is why it is known as three-way catalytical converter. In this we are controlling two components, that is why it is known as two-way catalytical converter. Now for all these discussion for this lecture, the book which I am going to follow is Engineering Fundamental of Internal Combustion Engine by Pulkrabek. That is from the PHI publication, and most of the data which I will be presenting in this lecture is taken from this book. Now we know that from the name that here we will be using some catalyst. The catalytical converter generally are using the catalyst platinum and rhodium. The platinum increases the rate of reaction as the other catalyst does. The rate of reaction is being increased and the temperature at which the reaction will be taking place, that will be decreased. The main purpose of the catalyst is to decrease the temperature in this catalytical converter, and it will be enhancing the rate of reaction so that carbon monoxide, which is coming as a pollutant, that will be absorbing oxygen from the surrounding and that will be converted into CO2. Unburnt hydrocarbons, they are also containing the hydrogen and carbon, and they will be reacting with the oxygen and they will be converting into CO2, H2O, and some amount of the heat also will be released, and some amount of the heat will be released in the upper reaction also. So here we will be having some amount of heat also in this reaction also. So now we have to use the catalytical converter to decrease the temperature of the reaction. The reaction which I have explained here or which I have written down, they may take place, but the temperature at which they will be taking place, that will be high. So these will be taking place nearly at the temperature of 700 degrees Celsius. But when we will be using the catalyst, then the temperature at which the reaction will be coming out, that will be nearly 400 degrees Celsius or below. So we can carry out the reaction at the 400 degrees Celsius or below with the help of the catalyst. Now at this point I would like to discuss two things. The one thing is that why we need catalytical converter. Although the catalytical converter which we will be using, that will be having two drawbacks in the vehicle. The first drawback is that increase in cost, and second is increase in weight. So these are the two factors which are associated with the catalytical converter, increase in cost and increase in weight, and both these factors are negative. These should not be there. We want that vehicle should be cheap and its weight should be less. Its weight will be less, then less fuel will be consumed and less amount of the pollution will be generated. Now even then we are using the catalytical converter. So the reason behind the catalytical converter is that we want that engine should operate optimally. इसका जो ऑपरेशन है दैट शुड बी ऑप्टिमम, के जो मैक्सिमम से मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप इंजन से ले सकते हैं वो लेने की कोशिश कीजिए. अब आप जानते हैं कि इंजन विच इज़ इंटरनल कम्बस्शन इंजन, दैट विल बी गिविंग or its performance will be enhancing, its efficiency will be enhancing when temperature inside the engine will be enhancing. So
to enhance the performance of the internal combustion engine, we have to enhance the temperature, and enhance in temperature increase the production of the NOx. So idea at this point is that we should enhance the temperature inside the engine, we should enhance the production of the NOx, but this will improve our efficiency, and the NOx which will be produced will be controlled by catalytical converter. तो जो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ नॉक्स प्रोड्यूस होगा उसे आप कैटालिटिकल कन्वर्टर से कंट्रोल कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारे पास वेट इन्हेंस हुआ, दैट विल बी ऑप्टिमाइज विद द इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। जो हमारे पास कॉस्ट इंक्रीज हुई, दैट विल आल्सो बी ऑप्टिमाइज विद द लेसर फ्यूल कंजम्पशन। तो इन सब चीज़ों को जब हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल एनालिसिस। तो लाइफ साइकिल एनालिसिस ये कहता है कि अगर आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और अगर मान लीजिए उसका पे बैक पीरियड 3 इयर्स और लेस है तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है। तो कैटालिटिकल कन्वर्टर का जो पे बैक पीरियड है वो कम है इससे, तो इसलिए इसको हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेकंड थिंग, जो सेकंड प्रॉब्लम है कैटालिटिकल कन्वर्टर के रास्ते में, या जो क्वेश्चन इसके बारे में उठाया जाता है वो ये है कि जो कैटालिटिकल कन्वर्टर हैं उनको ऑपरेट करने के लिए नियरली जो टेम्परेचर रेंज है वो 300 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस है। तो जब तक ये 300-400 डिग्री सेल्सियस अचीव नहीं होगा तब तक उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम नहीं आती, बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं आती। और 300-400 डिग्री सेल्सियस अचीव करने के लिए जो हमारे पास कार है या इंजन है, दैट शुड रन फॉर नियरली अबाउट 3 किलोमीटर्स के, कम से कम 3 किलोमीटर तक तो चले। पर सिटी लाइफ के अंदर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ जो व्हीकल्स होते हैं, कार्स होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें थोड़ी देर चलाते हैं। थोड़ी देर में 3 किलोमीटर बहुत कम कारें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने कुछ सामान खरीदने के लिए जाना है तो आप नियर बाय मार्केट में जाएंगे। नियर बाय मार्केट 3-4-5 किलोमीटर पे होती है, तो उतने किलोमीटर में आप गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हैं, मार्केट तक पहुंचते हैं, इतने में ही इंजन को शट डाउन करने का टाइम आ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है दैट इज़ नोन बाय दी प्रॉब्लम ऑफ कोल्ड स्टार्ट, कि अगर आप गाड़ी को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपका इंजन गर्म नहीं हुआ है, इंजन गर्म नहीं हुआ है तो कैटालिटिकल कन्वर्टर भी गर्म नहीं होगा, कैटालिटिकल कन्वर्टर गर्म नहीं होगा तो उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम नहीं आ पाएगी। तो परफॉर्मेंस अगर ऑप्टिमम नहीं आएगी तो उस केस में जो हमारे पास कैटालिटिकल कन्वर्टर है उसका बेनिफिट कम हो जाएगा। तो इन सिचुएशंस को दोनों को हम कैसे डील आउट करेंगे, या इन सिचुएशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको कुछ कैटालिटिकल कन्वर्टर की कंस्ट्रक्शन और उसमें हम कैसे लोडिंग करते हैं केमिकल्स की, उसके बारे में बताऊंगा। तो कैटालिटिकल कन्वर्टर की जो लोकेशन है जनरली वो मफलर्स में लगाया जाता है। मफलर वो जगह होती है जहाँ पे हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेज बाहर की तरफ जारी होती हैं। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास इनलेट है जहाँ पे हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेज आएंगी और यहाँ से वो बाहर की तरफ चली जाएंगी, यानी कि ये आउटलेट वाला पार्ट हो गया हमारे पास। अब इनलेट और आउटलेट में हमें क्या करना है कि मफलर जो होता है हमारे पास, मफलर की जो लंबाई होती है वो मैक्सिमम 1 से 2 मीटर्स तक हो सकती है। अगर बड़ा ट्रक है, बड़ा व्हीकल है तो वो 2 मीटर जाती है। अगर मान लीजिए छोटा है तो वो 1 मीटर तक भी रहती है, मतलब कम हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इस 1 मीटर में हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि जो 1 मीटर की लेंथ है वो बहुत कम है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 तरीके अपनाते हैं। वी आइदर यूज़ दी मैश के जाली बनाएंगे। एक जाली जो होती है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिरकोनियम ऑक्साइड की होती है, और उस जाली को फिर हम क्या करेंगे, मल्टीपल मैसेज को यहाँ पे लोड करेंगे। अब जो ये मल्टीपल मैसेज हम लेके चलते हैं, ये मैसेज के ऊपर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कैटलिस्ट होता है प्लेटिनम या रोडियम, उसकी डोपिंग करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मेटल का कोई पीस है तो मेटल के पीस के ऊपर उसके अंदर हम इसकी डोपिंग कर देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जो हमें पार्टिकल्स देने हैं प्लेटिनम रोडियम के, वो हम स्मॉल साइज में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जितना मास ओरिजिनली हम चाहते हैं उससे कम मास इस पर हम डोप करेंगे, या जो हमारा मास का कंजम्पशन है प्लेटिनम रोडियम का वो कम हो जाएगा। कारण क्या है कि जो प्लेटिनम और रोडियम है वो प्रीशियस मेटल हैं, बड़े कीमती मेटल हैं, हम चाहते नहीं कि वो ख़राब हो। उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। प्लेटिनम जो है वो लगभग गोल्ड के इक्विवेलेंट रहता है कॉस्ट उसका, तो हम ये ख़राब करना नहीं चाहते। तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर डोपिंग कर देते हैं
ताकि स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर स्टिक हो जाएं। और दूसरा फिर ये है कि जो आप स्मॉल पार्टिकल्स को फिक्स कर देंगे तो जब गैसेस पास होंगी तो दे विल बी हैविंग लार्जर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, उनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मफलर होता है उसकी लंबाई जो होती है 1 से 2 मीटर होती है, और जो उसका डायमीटर होता है वो अलग अलग रहता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं होता। तब भी हम मैश की हेल्प से जो एरिया है दैट वी इंक्रीज अप टू 70,000 मीटर स्क्वेयर, कि इस छोटे से एरिया को 1 से 2 मीटर की जो लेंथ है हम उसमें जो कैटालिस्ट है उसको 70,000 मीटर स्क्वेयर एरिया पे स्कैटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैश। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसमें हम स्मॉल पिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल पिलेट्स यानी कि स्फेरिकल पिलेट्स रहेंगी, तो स्फेरिकल पिलेट्स हम इसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये जो स्फेरिकल पिलेट्स रहेंगी ये पूरे मफलर में रहेंगी। तो अब इसमें या तो आप स्फेरिकल पैलेट्स का इस्तेमाल करेंगे या मैश का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी एक चीज़ का इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब इस तरह की जो चीज़ है उसका बेनिफिट क्या है, हम मैश से एक्चुअली अचीव क्या करना चाहते हैं। हम मैश से ये अचीव करना चाहते हैं कि जब हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेज आएंगी तो एग्जॉस्ट गैसेज आने के बाद जब इस मैश में से आएंगी तो मान लीजिए वो इस होल से पास हो जाती हैं। अब सेकंड पार्ट पे जाने के बाद तुमको थोड़ा रास्ता चेंज करना पड़ेगा ताकि वो दूसरी मैश से होल से पास हो सकें। फिर उनको तीसरे मैश के होल से जाने के लिए अगेन रास्ता चेंज करना पाथ चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह जब आप मल्टीपल पाथ चेंज करती हैं तो मल्टीपल पाथ चेंज करते हुए तो वो मैश के कॉन्टैक्ट में आती हैं। मैश के कॉन्टैक्ट में आएंगी तो वो जो हमने उस पर डोपिंग की हुई है कैटलिस्ट की उसके कॉन्टैक्ट में आएंगी। उसके कॉन्टैक्ट में आएंगी तो जो केमिकल रिएक्शन है वो उसमें अंदर हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपने पिलेट का इस्तेमाल किया है तो पिलेट के इस्तेमाल में भी सेम प्रोसीजर रहेगा। मान लीजिए वो यहाँ से जाना चाहती है तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा। अब ऊपर जाने के बाद उसके पास नीचे से रास्ता या मल्टीपल पाथ से ऐसे घूमते हुए वो बाहर की तरफ जाएगी। तो रास्ते में जो है आपने अलग अलग जगह पे पिलेट्स को भर दिया है। स्मॉल डायमीटर की होती हैं पिलेट्स, बहुत ज़्यादा स्फेरिकल शेप की होती हैं, तो उन पिलेट्स को इसके अंदर भर दिया जाता है जिसकी वजह से उनको मल्टीपल पाथ एक्सचेंज करना पड़ता है। तो मल्टीपल पाथ एक्सचेंज करने की वजह से उनका जो कॉन्टैक्ट है वो मल्टीपल टाइम्स होता है। और हम ये मान के चलते हैं कि जो मल्टीपल पाथ है ये लगभग 30 टाइम्स तक हम चेंज करवाते हैं। मिनिमम 5 टाइम्स चेंज करवाना है आपने, और एट मैक्स इतना भी हो सकता है, पर लेकिन 30 टाइम्स तक ऑप्टिमम माना गया कि 30 टाइम्स तक उनको चेंज करवाते हैं पाथ को। इस पाथ को चेंज करने की वजह से वो कॉन्टैक्ट में आती हैं कैटलिस्ट के, और कैटलिस्ट के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो जैसे मैंने आपको बताया कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगी तो ये CO2 बना देगी, सिंपल रिएक्शन। अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन्स होंगे तो वो फिर अगेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो हीट होगी रिलीज होगी तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट भी जो रिलीज होगी दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द कैटालिटिकल कन्वर्टर। अच्छा, अब हमें इसमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है, कैटालिटिकल कन्वर्टर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। अगर ये बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है तो उसके बाद भी कैटालिटिकल कन्वर्टर ख़राब हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से। तो अब जो मान लीजिए कि 2 चीज़ें हो जाती हैं, अब तीसरी चीज़ इसमें जो रोडियम ने रोल प्ले करना है, ये वाले जो दोनों काम होते हैं तो प्लेटिनम कर देगा, क्योंकि प्लेटिनम जो है दैट इज़ ए गुड कैटलिस्ट टू इन्हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन। अब कुछ जो हमने रोडियम की डोपिंग की है, रोडियम क्या करता है, ये नॉक्स को कंट्रोल करने का काम करता है। नॉक्स का मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारे पास अवेलेबल थी, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगी एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन एंड CO2। तो नाइट्रोजन और CO2 दोनों ही नॉन हार्मफुल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे इन सम सेंस कि ये पॉइजनस नहीं रहेंगे हमारे लिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है और कार्बन मोनोऑक्साइड है और कुछ वाटर की प्रेजेंस भी आ जाती है, पानी भी इसके अंदर आ गया है, क्योंकि हमें कंबशन से अचीव हो, जैसा कि मैंने ऊपर बताया हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं तो वो पानी को रिलीज करते हैं। तो दे विल बी गिविंग अस दी अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कि हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में नॉक्स की अवेलेबिलिटी हो गई है, नाइट्रोजन ऑक्साइड लार्ज क्वांटिटी में हो गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी कम क्वांटिटी में है। तो इस केस में जो हमारे पास रिएक्शन होगी दैट विल बी N2O प्लस CO2 बनेगा। N2 को फिर फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा इसे किसी नॉन हार्मफुल सब्सटेंस में, तो उसके लिए फर्दर केमिकल रिएक्शंस रहती हैं जो इसमें कैरी आउट होती हैं। अगर मान लीजिए कुछ प्रेजेंस H2 की है, H2 वाटर गैस रिएक्शन से आता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर और कार्बन मिलके, यानी कि हमारे पास C प्लस H2O पार्शियल कंबस्टन हो जाएगा, तो दैट विल बी फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। तो ये जो H2 प्रेजेंस है वहाँ से आती है। तो अगेन इट विल बी गिविंग N2, क्योंकि जो H2 है दैट इज़ हैविंग मोर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, तो ये H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा और अपने आप को पानी में कन्वर्ट कर लेगा।
अगर मान लीजिए कि हमारे पास और भी मात्रा में लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हैं दोनों चीज़ें, तो ये एक दूसरी तरह की केमिकल रिएक्शन भी कैरी आउट कर सकती हैं। इस केमिकल रिएक्शन में हमें अमोनिया भी मिल सकता है, लेकिन ये भी अगेन स्मॉल क्वांटिटी में होगा, और अमोनिया पर लेकिन प्रैक्टिकली दैट इज़ ए पॉइजनस गैस। तो लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में निकलेगा और एनवायरनमेंट में चला जाएगा हाई टेम्परेचर की वजह से, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और H2 ये मिलती हैं, तो हमें N2O और H2O मिलेगा। ठीक है, तो ये वो केमिकल रिएक्शन है जो कि रोडियम प्रमोट करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो व्हीकल्स हैं उनका साइज़ बहुत वेरिएबल है, बहुत अलग अलग साइज़ है। जैसे लार्ज बस और ट्रक्स हैं, तो उनके केस में प्रॉब्लम ये होती है कि जो लार्ज बस और ट्रक्स हैं उसमें अगर आप प्लैटिनम रोडियम की डोपिंग करेंगे तो आपको लार्ज अमाउंट में डोपिंग करनी पड़ेगी, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो इसके लिए अब एक दूसरा प्रोसीजर निकाला गया है, दूसरा प्रोसीजर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आलमोस्ट काफ़ी व्हीकल्स में, नए जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें इस्तेमाल किया जाएगा, और वो प्रोसीजर है अमोनिया इंजेक्शन सिस्टम। तो इसमें हम अमोनिया का इस्तेमाल करेंगे और अमोनिया को इंजेक्ट किया जाएगा इन दी कैटालिटिकल कन्वर्टर में। ठीक है, तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन रहेगी उसके अंदर हम लेंगे अमोनिया जो कि 4NH3 है, प्लस इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड की अवेलेबिलिटी रहेगी, प्लस ऑक्सीजन रहेगा। तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके हमारे पास जो नेट प्रोडक्ट होगा N2 + 6H2O आ जाएगा। ऑब्वियसली इसके लिए भी हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट तो रहेगी, तो यहाँ पे कैटलिस्ट के अगेन अगर मान लीजिए नाइट्रोजन ऑक्साइड है प्लस हमारे पास अमोनिया की अवेलेबिलिटी है, तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद नाइट्रोजन और वाटर हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो रिएक्शन की जिसमें हमने अमोनिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड को लिया, इनकी रिएक्शन के बाद हमें वाटर और नाइट्रोजन मिल जाता है। तो ये जो वाटर और नाइट्रोजन है ये सभी नॉन हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, इनसे हमारा कोई नुकसान नहीं होता, तो इसलिए इसमें हमें जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं दे आर नॉन हार्मफुल। तो अब यहाँ पे ये चीज़ है कि जो ये अमोनिया का सिस्टम है, ये अमोनिया कहाँ से आएगी, तो ये अमोनिया हमें एक्सटर्नली फीड करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं जहाँ पे डीजल में बहुत लार्ज क्वांटिटी में हाई टेम्परेचर रहता है, डीजल हाई क्वांटिटी में बर्न होता है, तो उस तरह के ट्रक्स में एक अलग से टैंक प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर अमोनिया को रिफ़िल करना पड़ेगा। तो ये अमोनिया आउटसाइड से रिफ़िल की जाती है, रिफ़िल करने के बाद उस ट्रक में धीरे धीरे उस अमोनिया का कंजम्पशन होता रहता है। जब अमोनिया ख़त्म हो जाती है तो फिर जो नया अमोनिया है उसको उसमें फीड कर दिया जाता है, या नए अमोनिया को उसमें डाल दिया जाता है। अब इसके अलावा जो कैटालिटिकल कन्वर्टर, जैसे मैंने आपको 2 प्रॉब्लम बताए थे कि कैटालिटिकल कन्वर्टर के इस्तेमाल में 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें कॉस्ट और वो बढ़ जाता है, ठीक है, उसका सोल्यूशन हो गया। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कोल्ड स्टार्ट, कि जब आपने इंजन को स्टार्ट किया तो कैटालिटिकल कन्वर्टर गर्म नहीं होता, उसका टेम्परेचर कम होता है। तो इसके लिए 2-3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि टेम्परेचर को बढ़ाया जा सके। पहला तरीका तो ये है कि कैटालिटिकल कन्वर्टर के अंदर हम एक हीटर लगा सकते हैं जो कि बैटरी से ऑपरेट होगा। तो इस हीटर की हेल्प से या हीटर को लगाने से आप क्या करेंगे, जब इंजन को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले हल्का सा इस हीटर को स्टार्ट किया जाएगा, जिससे कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और कैटालिटिकल कन्वर्टर अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आ जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसमें एक एडिशनल फ्यूल की लाइन सप्लाई कर सकते हैं। जब हम इंजन को स्टार्ट करेंगे तब स्मॉल क्वांटिटी में फ्यूल इसमें इंजेक्ट किया जाएगा और इस फ्यूल को बर्न किया जाएगा। जब ये फ्यूल बर्न हो जाएगा तो अगेन इट विल बी जनरेटिंग हाई टेम्परेचर, और उस हाई टेम्परेचर की वजह से ये वाला पार्ट जो है वो गर्म हो जाएगा। तो ये गर्म होगा, तो गर्म होने के बाद ये अपना टेम्परेचर अचीव कर लेगा। तीसरा पार्ट हम इसमें ये कर सकते हैं कि जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उसमें इंजन को स्टार्ट करने में हम फ्यूल को थोड़ा सा रिच रख सकते हैं, यानी स्टार्टिंग के टाइम पे जो हमारे पास इंजन के अंदर फ्यूल आएगा दैट विल बी समवच रिचर। तो फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा फ्यूल होगा तो वो अनबर्न्ड पार्ट कुछ यहाँ पर आएगा। जब अनबर्न्ड पार्ट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वो कैटलिस्ट के अंदर इंटेंगल्ड हो जाएगा, और हाई टेम्परेचर और फ्यूल की अवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पे हल्का सा केमिकल रिएक्शन होगा, और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से ये हीटअप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। अब हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा कैटालिटिकल कन्वर्टर का जो नुकसान है दैट इज़ अबाउट द लॉस ऑफ प्रेशर, कि जब इसमें से एग्जॉस्ट गैसेज बाहर जा रही होंगी तो उनका कुछ प्रेशर लॉस हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि उनको मल्टीपल पाथ चेंज करना पड़ा है, एक ऑब्स्टेकल से पास होना पड़ रहा है। तो ऑब्स्टेकल से पास होंगे तो उनका जो प्रेशर है दैट विल बी लॉस, प्रेशर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा इसका जो नुकसान है वो ये कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, कुछ एडिटिव्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें डालना पड़ता है फ्यूल के अंदर, और कुछ हम डालते हैं
लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर। जैसे एडिटिव्स में बता रहा हूँ कि हमारे पास सल्फ़र है, सल्फ़र की फ्यूल के अंदर प्रेजेंस रहती है। उसके अलावा जिंक हो गया, फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है, एंटीमनी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये कुछ, पोटाशियम, फास्फोरस, तो ये कुछ ऐसे केमिकल हैं, ये एलिमेंट्स हैं जो कि फ्यूल के अंदर और लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इन एलिमेंट्स की वजह से क्या होता है, जो कैटालिटिकल कन्वर्टर है वो ख़राब हो जाता है। जब ये एलिमेंट्स कैटालिटिकल कन्वर्टर के ऊपर से पास होंगे तो उसके ऊपर से पास होते हुए क्या करेंगे, वो कैटालिस्ट को ख़राब कर देंगे, तो कैटालिस्ट से ख़त्म हो जाएगा। वैसे अगर आप नॉर्मली कैटालिस्ट को चलाते हैं तो उसकी जो लाइफ टाइम होता है वो 1,00,000 किलोमीटर से 2,00,000 किलोमीटर तक रहता है। मतलब 1,00,000 किलोमीटर से 2,00,000 किलोमीटर तक आपको कैटालिटिकल कन्वर्टर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इस तरीके से जो कैटालिटिकल कन्वर्टर है वो काम करता है, और ये इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। तो इसके बाद जो मैंने डिस्कस किया है, अगर आपका इसके बारे में कोई डाउट है तो आप मेरे से बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग।